It's truly amazing to live in the world of today, where we all have everything on the tip of our fingers. And of course, the social media is something very close to every heart. In fact, we spend maximum time these days being with the social media. It's almost like our bestie or our best friend. It's time for us to welcome our renowned YouTuber, who's of course set standards for himself, achieved supreme success, and at the same time being a numero uno in the world of professional digital marketing trainer. The well-known name in the field of YouTube consultancy. May we please welcome the founder of Franchise Batao Startup and B2B Expansion Coach. Let's give it up for Dr. Ashish Agarwal ji. Hello, Dr. Ashish. How are you doing today? I'm fine, ma'am. Thank you. It is such a huge honor to have your humble presence here. Thank you. And of course, we all want to be famous like you on YouTube. So, the world is watching us today only on Wow Talk. Let's get started and quickly get some great tips from you. I usually don't speak when I present the bouquet, but I can't wait to know your secrets. Let's unveil them. Definitely. Please take your seat. Thank you. Thank you. Dr. Ashish, let's truly begin with how did this thought come to you and when did it come to you? क्योंकि शुरू में जब सभी कहते थे that you know all I do is I'm on YouTube, people would say, what are you doing there on YouTube? Is that work? ये तो कुछ passion होगा. So आपकी ये journey कब शुरू हुई और आपको कब realize हुआ? क्योंकि अभी तो आप जो देखते हैं, you know, they want to create a mark, but it's not easy. So tell us a little bit about it in 2 minutes. Definitely. So in year 2014, I started learning digital marketing. और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा स्कोप है. जैसे हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, ग्रेजुएशन करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं. तो डिजिटल मार्केटिंग में भी इसी तरीके से 30 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं. लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जिसने अट्रैक्ट किया वो था यूट्यूब, क्योंकि वहाँ पर आप जब वीडियोस बनाते हो और वो वीडियोस लोगों को शेयर करते हो और वहाँ से जब आपके पास कोई अप्रिशिएशन आता है तो अप्रिशिएशन किसको अच्छा नहीं लगता. सो व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोस एंड आई हैड सेंड दोज वीडियोस टू माय फ्रेंड्स, और उस समय बिल्कुल नया नया था 2014 में, आज से तकरीबन 9 साल पहले तो इतने यूट्यूबर्स भी नहीं हुआ करते थे और यूट्यूब भी इंडिया में नया नया ही था. Exactly. तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बोला आशीष कैसे कर रहे हो, हाउ यू आर फेसिंग द कैमरा, हाउ यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स. तो मुझे लगा यार मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ. सो ऑल द लव टू दोज फ्रेंड्स हु अप्रिशिएट्स मी एंड इनकरेज मी टू स्टार्ट माई यूट्यूब जर्नी. बहुत बहुत बधाई हो आपको, बिकॉज दैट वाज द टाइम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि पैंडेमिक के टाइम से तो everyone had no choice but to, you know, sit on the social media and YouTube. So thereon, of course, there has been a change altogether, but people who started, you know, right from the time you started have really reached a different stage altogether. Yes. So towards the beginning, let's give one mantra to everyone. Ki, is it too late for others to be on YouTube right now? What is the trend? और ये इतना fluctuate होता है, and you know, चाहे वो hashtags हो, sometimes you know you realize you get to hear that no hashtags, or sometimes you get to hear that, oh, you need to have the very important ones. So how does it all work? देखिए, hashtags are dead now. There is no scope of hashtags. और आप कभी भी किसी भी फील्ड में एंटर करिए, कभी लेट नहीं होती है. अच्छा. वो हिंदी के कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा. बिल्कुल. So अभी आपको लग रहा है कि you have something to share. सो यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म. और यूट्यूब ही नहीं, आप सोशल मीडिया में आप फेसबुक पर करिए, इंस्टाग्राम पर करिए, लेकिन अगर आपके पास शेयर करने के लिए कुछ है तो करिए ज़रूर. जिंदगी में नहीं करना सबसे बड़ा फेलियर होता है, करके हारना कोई फेलियर नहीं है. ओह, आई लाइक दिस. बट जब आपने शुरू किया तो कितने व्यूज मिलते थे? एंड यू नो, आई मीन, you know, we all do that, right? I mean, of course, we want views, we want likes, we want comments, and then we get into the game as well. So, शुरू में आपको कैसा लगा? And did you feel disheartened? It's not working. I'm wasting so much time. ऐसे लगा I'm investing so much of money. देखिए, हमारे पास खोने के लिए कुछ था नहीं. तो 1 view, 1 like and 1 appreciation is like crores for me.
सो आपके पास खोने के लिए क्या है, आप ये देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कुछ भी नहीं है, तो यूट्यूब इज़ द प्लेस और सोशल मीडिया इज़ द प्लेस विच कैन गिव यू अ लोट। आप जितना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा ये मिथ है, जो ये लाइक्स कमेंट्स और आपको लगता है ना व्यूज़, ये पूरा का पूरा मिथ है। आप लोगों तक तो पहुंच रहे हो, अल्टीमेटली आपका गोल ये होना चाहिए कि जो मेरा कंटेंट है, जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो मैंने सही तरीके से डिलीवर किया या नहीं किया। इफ़ यू आर हैप्पी विद योर वर्क, देन आप कुछ मत सोचिए, ना व्यूज़ के बारे में सोचिए, ना लाइक के बारे में सोचिए, और उसको कंटिन्यूअसली करते रहिए। और जब आप इसको कंटिन्यूटी के साथ करेंगे, तो एक वर्ड है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो आपकी कंसिस्टेंसी आपको सक्सेस दिलाएगी। और अगर आप इस ट्रैप में फंस गए कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो एक समय आप उसको छोड़ देंगे, और जिस समय आप छोड़ेंगे उसी समय आपको अगले पायदान पे सक्सेस खड़ी होती है। आप सभी लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हम कुआं खोदते हैं, और हमने एक बहुत गहराई तक कुआं खोद लिया, और जहां पर हम हार मान लेते हैं उसके 1 फीट नीचे पानी होता है। बिल्कुल। तो जब आपने कोई काम शुरू किया है और आपको लग रहा है कि उस काम में आगे जाकर आपको सफलता मिल सकती है, तो यकीन मानिए उस काम को छोड़ना नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको सफलता मिल गई। जी बिल्कुल। सेंटर कैमरा आल्सो। ओके, डेफिनेटली आल्सो। अच्छा, फ्रेंचाइजिंग के बारे में आपने ज़्यादा बिल्कुल पूछा है। बिल्कुल। सो आई रियली वांट टू नो अबाउट द ब्रिलियंट फ्रेंचाइज, ये थॉट किस तरह आया, एंड you've been doing that and helping people as well. Yes. You know, to come up with franchise. So how did this thought come? And I think you're the best one at it, and at the same time, चाहे वो B2B हो या B2C हो. Definitely. So it's always thumbs up. So basically क्या है कि जब मैं YouTube जर्नी पे था, मैं कंटेंट अपने बना रहा था, शेयर कर रहा था, मेरे जो कंटेंट होते थे बिजनेस से रिलेटेड ही होते थे। तो जब मैं बिजनेस कंटेंट लोगों से शेयर कर रहा था, तो मुझे एक माइक्रो निश मैं कहूँ कि मेरे अट्रैक्शन में आया, दैट इज़ फ्रेंचाइज। और फ्रेंचाइजी क्या होता है कि लोगों के बिजनेस को बढ़ाने का बहुत आसान तरीका है। अगर यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ और आपको लगता है कि यही काम दूसरे कर भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, तो आप फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और मैंने फिर फ्रेंचाइजिंग के ऊपर वीडियो बनाने शुरू किए, और जब मैंने फ्रेंचाइजिंग के ऊपर वीडियो बनाने शुरू किए, तो दैट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गेट माय क्लाइंट, व्हेन आई गेट माय फर्स्ट कस्टमर। एप्रिसिएशन तो बहुत मिल रहे थे, लेकिन मुझे मेरा पहला कस्टमर जब मैंने फ्रेंचाइजिंग के वीडियो बनाने शुरू किए तब मिला। और जब मुझे लगा कि जब मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे कस्टमर मिल रहा है, तो मैंने उसके अंदर ज़्यादा गहराई तक गया। मैंने सोचा कि मैं और क्या इसमें हासिल कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से और इन डेप्थ स्टडी कर सकता हूँ। फिर मैंने बहुत सारे एग्जीबिशंस में जाना शुरू किया, बहुत ज़्यादा इसकी स्टडी करनी शुरू की फ्रेंचाइजिंग की। और उसके बाद मुझे ये लगा कि ये फ्रेंचाइजिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम जो सक्सेसफुल बिजनेस है उनको और तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। और वो लोग जो कुछ बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन पैसे की वजह से, आइडिया की वजह से, गाइडेंस की वजह से, हैंड होल्डिंग की वजह से बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तब मैंने उनकी फ्रेंचाइजिंग बताओ की मदद से उनकी हेल्प करना शुरू की। और वहाँ से विद द लव ऑफ योर ऑल एक के बाद एक सक्सेस मिलती चली गई। और आज मेरे यूट्यूब चैनल पर भी तकरीबन 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं ऑलरेडी 200 से ज़्यादा कंपनियों को हेल्प कर रहा हूँ उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और वहाँ से जब मुझे कुछ मिलता है तो वो वाव मिलता है। Exactly. So that is I'm getting. Exactly. The wow factor is every day with you. I really want to know वो कौन से 2 ingredients हैं which is very important for everyone today, चाहे वो youth हो, चाहे वो elderly adults हो, कि बहुत ज़रूरी है आज, because you know the world is changing of course and it's changing rapidly. So what are those 2 important ingredients to be successful according to you are very important? So पहला है keep changing। मतलब पहली चीज़ तो ये है कि आपको हमेशा अपडेट रहना, कीप चेंजिंग नहीं, कीप अपडेटेड। नया क्या आ रहा है मार्केट में, अगर आप उससे अपडेटेड नहीं रहोगे तो बाकी लोग आपसे दौड़ में आगे चले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपने नई चीज़ को नहीं सीखा और नई चीज़ से आपने कुछ सबक नहीं लिया। तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना है, अपने बिजनेस में जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्ट करना है और लोगों तक पहुंचना है। ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। और दूसरा, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहना चाहिए। आप चाहे बुक्स के माध्यम से सीखिए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से सीखिए, आप इस तरीके की टॉक्स में जाकर सीखिए, मतलब आपको जहाँ से भी कुछ सीखने को मिल जाए, आपको हमेशा लर्निंग मोड पे रहना चाहिए और दूसरा अपडेटेड रहना चाहिए। और ये 2 चीज़ें, बाकी तो सब आप मास्टर्स हैं अपने फील्ड के, दूसरों को क्या सिखाना। Wonderful. Since you said अपडेट रहना चाहिए, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी that
boost आजकल बहुत चल रहा है, you know, be it social media or YouTube. What is your say on this? मैं अपनी लाइफ में बहुत सिंपल रहता हूँ और जो मुझे लगता है मैं बड़े बेबाक तरीके से कहता हूँ लोगों से, और मुझे उसी से फ़ायदा होता है। तो मैं किसी भी ऐसी कंट्रोवर्सी में, या फिर मैं बात कहूँ कि जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं जिनका मुझे लगता है कि मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। अच्छा, मतलब आप फोकस्ड, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जब आप ट्रेंड्स चेक करोगे, तो ट्रेंड्स में आपको पॉलिटिक्स का भी मिलेगा, स्पोर्ट्स का भी मिलेगा, आपको और भी अलग अलग फील्ड के मिलेंगे। आपका क्या फील्ड है, आप किस चीज़ पर, आप कौन से निश पर बेस्ड हो, अपनी निश पर फोकस करिए, क्योंकि आपके निश के मास्टर आप हो। अगर आप आज कुछ और कर रहे हो, कल कुछ और करोगे, तो फिर आप अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। अपनी पहचान बनाने के लिए एक चीज़ पर फोकस रखिए और उसी चीज़ को पकड़कर आगे बढ़ते रहिए। वन डे पीपल विल नो यू। And we actually love you. So it's absolutely wonderful getting to hear from Dr. Ashish Agarwal. One message you like to give the world who's watching Wow Talks, and how does it feel being here with us? द मैसेज इज़ ओनली दैट कि जैसे मैं फ्रेंचाइजी बताओ पर जो कर रहा हूँ वही मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। फ्रेंचाइजी बताओ जो हमने 2018 में स्टार्ट किया, जब हमने स्टार्ट किया था तो कोई बहुत बड़ा मिशन और विज़न नहीं था, जस्ट स्टार्टेड, क्योंकि हमें कुछ कहीं से क्लाइंट्स मिल गए थे, कहीं से सक्सेस मिल गई थी, कहीं से लोगों ने हमें बोला कि ये करना है। लेकिन व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग और हमें वहाँ पर कुछ किक आना शुरू हुई, तो उस किक के बाद हमें लगा कि ये करना चाहिए, और विद द हेल्प ऑफ माय फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल दोज वी स्टार्टेड फ्रेंचाइजी बताओ। तो आपको भी जब कभी ऐसा लगे कि एक अपॉर्चुनिटी आपको नॉक कर रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी रोज रोज नॉक नहीं करती है। आपने एक बार अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो आपके पास वाव नहीं रहेगा, आपके पास सिर्फ ये रहेगा कि ओ शिट आई मिस। और अगर आपने उसे ग्रैब कर लिया तो वन डे यू विल बी हियर एट वाव टॉक। And that's how Dr. Ashish Agarwal is here with us. Let's give him a huge round of applause. And we're truly thankful to you. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। And girls, this is too good, yeah. Thank you. So, ma'am. Yes, come, sir. Ajay, sir. Ajay. Heartfelt congratulations and thank you for being here with us.